Hello dear beloved, welcome to this twin flame reading. We are here to find out today कि आपको क्या रिलीज करना है अभी इस टाइम टू कम टू यूनियन विथ योर डिवाइन काउंटर पार्ट. व्हाट इज इट दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ. क्या चीज़ आपको बांधे रख रहा है, रोके रख रहा है, आपके कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, right? So what do you need to release today? This is going to be a pick-up pile reading, right? So as you can see in front of you, there are 3 crystals. This one is yellow, this one is lemon quartz, second stone is lapis, and third one is rhodochrosite, right? So just take in a deep breath, relax your shoulders, breathe out through your mouth, and just take your person's name and pick any one stone that you feel called to, right? And we will see what is it that you need to let go of, what do you need to release in order to come into union with your divine counterpart, right? So first of all, we are going to take the lemon quartz that is right here, right? So if you pick lemon quartz, let us see what do you need to release right now. What do you need to release right now? All right, interesting. Bottom of the deck energy is the world. Okay, so this is already happening. Okay, it is very beautiful, and I'm really grateful and thankful to the universe that you are here right now watching this video, because you're already at the precipice of a new chapter opening up in your life, and probably this reading might give you the guidance that you require to close in the old chapter and to begin this new chapter that you are going to with this world card. Okay, so what do you need to release? I have the 5 of Pentacles coming out, then there is a 9 of Pentacles, 6 of Swords, the Tower card, and the Ace of Pentacles. So I feel like there is some blockage with regards to your root chakra, with relation to your sacral chakra, and with relation to your solar plexus as well. And lemon quartz is a stone of solar plexus, it activates the solar chakra. So yes, I just pulled the Tower card out. Okay, so this is telling me that right now you need to release this notion from your mind that you have constantly been left out, that you have constantly been abandoned, that no matter how hard you work, money always escapes you. Like you cannot gather the money that you require, you're always short of money. Okay, so I need you to release that belief right here, right now, because all of the abundance blocks that we experience in our lives are related to our own belief system that is governing our central nervous system, that has just taken over everything that is there in your life. All the limitations that you experience with regards to earning money, not having a good salary, about being very confused about what you want to do in life. If you have decided what you want to do in life, you are unsure about how to move forward. If you have moved forward, you might experience having lack of clients, like not many people coming in for you, towards you, right? So all of this is, why is this happening? You need to get down to the root of the problem, knowing that it is happening, that there is a certain belief within us that is keeping us from this abundance, because the universe wants to send all of this beautiful love towards you, this beautiful abundance, this glorious 9 of Pentacles energy. You can totally be this person, just being surrounded in luxury, having a place of your own, putting in the hard work and just reaping the benefits of your hard efforts, surrounding yourself with all of the wealth, all of the good things that the universe has to offer. All of that is already open for you, and universe wants to send that to you, right? It's already there in your vibrational account. So what is keeping you from it? It is only a lack belief. It is again and again focusing mention. It is only focusing on the fact that I don't have this, I don't have a partner, I don't have an opportunity, I don't have the resources, I don't have the time, I don't have the energy, I don't have the inclination. But kya hai? What is it that you have?
मयूर, व्हाट आर यू राइटिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड. आई हेट इज जूनी इज पेन. मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या लिखना चाह रहे हैं. तो क्या चीज़ आपके पास नहीं है, उससे अपना अटेंशन हटा के क्या चीज़ आपके पास है. डिवाइन ने आपको क्या दिया हुआ है, क्या स्किल्स हैं आपके, क्या टैलेंट्स हैं, किस चीज़ में आप अव्वल हैं. वॉट आर योर कैपेसिटीज़, क्या रिसोर्सेज हैं आपके पास जो अवेलेबल है, उसको आप यूज़ करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं. क्योंकि यूनिवर्स आपको यही बोलता है ना कि आपके पास ऑलरेडी वो सब कुछ है, ऑलरेडी आपको दिया गया है जो आपको ज़रूरत है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए. एवरीथिंग इज ऑलरेडी गिवन टू यू, राइट. इट्स जस्ट दैट वी आर जस्ट कॉन्स्टेंटली इन दैट नेगेटिव थॉट, इन दैट नेगेटिव माइंड. ओ नो, फिर से गलत हो गया, मैंने तो ट्रस्ट किया बट अगला फिर मुझे चीट कर गया, मेरे पैसे मार गया. और इट माइट बी दैट आई एम नॉट लकी. So all of these things, I'm feeling like this pile, if you have picked lemon quartz, you might be struggling with financial issues, and universe is sending you this beautiful Ace of Pentacles. It's already there, available for you, right. It's already there, and it's the scarab beetle represents hard work and dedicated effort. You have to show up every day. You cannot be like 2 days working hard and you don't see the results and you're like, okay, now this is worthless, this is meaningless, this is useless. It's not going to work. It doesn't happen that way. Whatever you are doing, you need to show up each day. You need to put consistent efforts, and consistent efforts meaning every day you are showing up with the same amount of energy, with the same attention. तभी आपको उससे सक्सेस मिलना शुरू होता है, क्योंकि आपने एक तरीके से अपनी एनर्जीज को एक संकीर्ण करके एक ही पॉइंट पे लगाया है, और उससे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उससे रिजल्ट ना आए, राइट. सो यू आर डियर वन मूविंग टूवर्ड्स अ बेटर टाइम. आपके लिए समय बेहतर होता नज़र आ रहा है. पास्ट में आपको कुछ लॉसेस हों, कुछ लोगों ने आपको चीट किया है, प्रॉबली आपकी मेहनत पे पानी फेर दिया शायद, राइट. सो टेक दैट एज अ डिवाइन डिटूर. Take that as something that was not aligned for you, it was not for you at that point of time. तभी वो चीज़ काम नहीं करी. Probably there's something bigger, better, greater waiting for you, so that you can be independent in yourself. You can be self-sufficient, you can be self-reliant, and you can build this beautiful energy that you have, right. So please step out of this 5 of Pentacles energy. बहुत हुआ. Take this reading itself as an indication कि बहुत हुआ, आपने बहुत सी गरीबी देख ली है. It's time to turn things around, dear one, right. And if you want to work with lemon quartz, it can help you at this point of time. I really hope this reading helped you, right. So if you have picked the lapis, let us see what is it that you need to release. What does this need to release? Okay, bottom of the deck is Knight of Cups. What do we have? I have the Strength card, Page of Swords, 6 of Pentacles, 10 of Wands coming in reverse. Very interesting, very nice. And 6 of Wands coming in reverse as well. Okay, तो ये मुझे बता रहा है कि पास्ट में आपकी रिलेशनशिप्स में आपने जितना एफर्ट डाला वो आपको रेसिप्रोसिटी नहीं मिली. बैलेंस तरीके से आपने जो भी दिया रिलेशनशिप में वो आपको वापस नहीं मिला, और ये आपके अंदर कहीं ना कहीं मलाल है. आप उसको पकड़ के बैठे हुए हैं, आप वो बात को भूल नहीं पा रहे हैं, या वो बात आपको बहुत सा पेन दे रही है, सैडनेस दे रही है, एंगर दे रही है. तो आपको वो चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है. रिलीज वॉट एवर हैपेंड इन द पास्ट, टेक दैट एज अ लेसन. वो आपका लव में एक लेसन था जो कि आपको सीखने की ज़रूरत थी उस टाइम, राइट. तभी डिवाइन ने आपको वो चैलेंजेस भेजे पास्ट रिलेशनशिप्स में, जो भी चैलेंजेस थे आपके. तो अपने एक्स को फॉरगिव करके यू नीड टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन योर सेल्फ, क्योंकि आपके लाइफ के क्रिएटर आप हैं, ठीक है. यू आर द स्क्रिप्ट राइटर ऑफ योर ओन लाइफ. पेन आपके हाथ में है, राइट. सो यू कैन नॉट बी ब्लेमिंग एनीबडी एल्स, क्योंकि आप ही अपनी स्टोरी लिख रहे हैं, राइट. सो ओपन अप अ पॉजिटिव चैप्टर. अपना पास्ट जो है उसके जो भी लेसन्स थे उनको स्ट्रेंथ के तरीके से अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए यूज़ करें,
राइट, यूज दैट टू योर एडवांटेज, क्योंकि डिवाइन ने जो भी आपको दिखाया was so that whatever relationship that you step into your divine with your divine counterpart, अगला relationship आपका आपके divine counterpart के साथ होने वाला है, and that is going to be a beautiful chapter which is going to be filled with balance and reciprocity and equal give and take. ठीक है, और वो कब हो सकता है? वो तब हो सकता है जब हम अपने आप को वो चीज़ें दे रहे हैं, राइट? जो चीज़ें आप अपने एक्स से एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रॉबली एंड यू weren't able to get it, राइट? क्योंकि आप प्लेस ऑफ लैक में थे तभी, है ना? तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है, डिवाइन कह रहे हैं कि आपके जो भी एफर्ट्स थे, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ भी आपको वही फीलिंग रिपीट हो रही है, वही स्टोरी रिपीट हो रही है कि मैंने तो बहुत कुछ किया और सामने से मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है? ना थैंक्स तो दूर की बात है, ना कोई एक्नॉलेजमेंट मिला, ना कुछ और मिला, राइट? सो आई फील अगेन एंड अगेन, आई फील लॉस, आई फील लाइक आई एम ड्रेन्ड। मैं अपनी रिलेशनशिप्स में बहुत ड्रेन फील करती हूँ। वो बिलीफ को आज हटा दीजिए। लैपिस आपके लिए वो क्लैरिटी लेकर आ रहा है, वो पावर लेकर आ रहा है, वो नोइंग लेकर आ रहा है। लैपिस इज स्टोन ऑफ आज्ञा चक्रा, ओके, थर्ड आई। इट इज़ नोइंग कि जो भी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, आपके लाइफ में आ रही हैं, वो आपके लिए हो रही हैं ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ मास्टरी में स्टेप इन कर सकें, ठीक है? तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर था आपका, आपकी लाइफ का, जो कि अब आपको एंड करने की ज़रूरत है। एंड आप कर ही रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है मैं फंस गई हूँ या मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। वो भी आपके माइंड में है केवल वो भी आपके माइंड में, क्योंकि लाइफ आगे बढ़ती चली जा रही है, समय बह रहा है तो लाइफ भी आगे चल रही है, सांसें चल रही हैं, मतलब लाइफ भी आगे चल रही है। तो पीछे कौन रह रहा है, अटक के कौन रह रहा है? हम केवल अपने दिमाग में अटक के रह पा रहे हैं, ठीक है? कि पास्ट को लेकर या फ्यूचर को लेकर स्टकनेस जो भी आप फील कर रहे हैं उसको जाने दें। इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू, ऑल दैट नेगेटिविटी इज़ नॉट हेल्पिंग यू। रूबीना लिख रही है रिलीज रिलीज रिलीज, तो वो उसको छोड़ देने की ज़रूरत है, क्योंकि तब आप भी इमेच्योर थे, है ना? और लैपिस आपके लिए वो मेच्योरिटी, वो परसेप्शन लेकर आ रहा है, वो स्पिरिचुअल मेच्योरिटी आपके लिए लेकर आ रहा है कि जो भी कुछ हुआ आपको अपने अंदर इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हुआ, ताकि आप अपने कंपैशन में आगे बढ़ सकें। और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो हैं वो आपके लिए भी वेट कर रहे हैं, जितना आप उनके लिए वेट करें उतना वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, राइट? सो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ होने वाला है, उसमें आने से पहले आप अपनी सेल्फ मास्टरी में आए, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो जो भी पास्ट में हुआ, जो भी अनबन हुई या जो बुरे सर्कमस्टेंसेस थे, इवन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ जो भी बुरी चीज़ें हुई, उनको रिलीज़ कर दें आज। ये एक्सेप्टेंस में आ जाएं कि जो भी कुछ हुआ वो मेरे लिए हुआ, और हमारी स्टोरी जो है वो हर वक्त आगे बढ़ रही है। दिस ब्यूटिफुल नाइट ऑफ कप्स गोइंग फॉरवर्ड एंड अगेन, ये आप देखें कि नाइट जो है वो कप में से खुद ही पी रहा है है ना? तो आप में से कुछ को फील हो रहा कि मैं तो भैया इतना कुछ दिया मेरे डीएम को और वो तो सब लेके भाग गए टाइप्स। मतलब वो खुद ही उन्होंने वो लव जो है वो खुद ही में डाल लिया, है ना? वो मुझे तो कुछ नहीं दिया। बट ये नाइट ऑफ कप्स आपको यही याद दिला रहा है कि फर्स्ट हमने खुद को देना है। आप जितना लव खुद को देंगे, जितना अटेंशन और जितना जेन्युइन लव और जेन्युइन कंसर्न और कंफर्ट जो अपने आप को जो आप देंगे, उससे जो आपकी सोल की नरिशमेंट होगी, जो आपका डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है वो और भी ब्यूटीफुल हो जाएगा। ये सब सुनने में बहुत अटपटा सा लगता है, बहुत बचकाना लगता है, पर इसका पावर वही जानते हैं जो इस पे अमल करते हैं, जो इस राह पे चल पड़ते हैं, सेल्फ लव की जो पाथ पे जो चल पड़ते हैं, उन्हीं को पता है कि कितना पावरफुल है। क्योंकि एक बार अगर मैं खुद को प्यार देना शुरू कर दूं तो फिर मैं देखिए ना, आपने जब अगर मान लीजिए आपने फेरो रोशर चॉकलेट खाई है, ठीक है, उसके बाद आपको कोई किस्मी बार लाके देता है तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। आपको पता पड़ेगा कि हाँ, इन दोनों में से बेहतर चॉकलेट कौन सी है, कौन सी मेरे हेल्थ के लिए थोड़ी सी बेटर है किसका टेस्ट अच्छा है, राइट? तो अगर आप खुद को वो फेरो रोशर चॉकलेट दे रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति सामने से आकर अगर आपको किस्मी बार देगा तो आप बोलेगा क्या है चल तो निकल यहाँ से तो कहने का ये मतलब है कि देन यू स्टार्ट रिकग्नाइजिंग योर ओन वैल्यू, व्हाट यू ब्रिंग टू योर सेल्फ, एंड वो बहुत ही क्लियर डिमार्केशन हो जाता है ये समझने में कि अगला पर्सन आपके लिए जो लेकर आ रहा है वो आपके लिए अच्छा है या नहीं,
लॉन्ग रन में आपके लिए अच्छा है कि नहीं, और क्या आप भी उसको फेरो रोशर दे सकते हैं या नहीं, राइट। इट गोज़ बोथ वेज बिकॉज इट्स अ रिलेशनशिप, सो इट गोज़ बोथ वेज, है ना। पता पड़ा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फेरो रोशर और आप खुद ही किस भी उनको दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है, राइट। तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो हमें याद दिलाती है कि वी नीड टू फर्स्ट पॉर इन टू आवरसेल्व्स, वी नीड टू गिव टू आवरसेल्व्स, एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड रिमाइंडिंग यू कि आपका कनेक्शन जो है वो आगे बढ़ रहा है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। ये टफ सिचुएशन जो भी आपने एक्सपीरियंस करी है, वो बर्डन्स अब छोड़ देने का टाइम आ गया है। आप सीधे सीधे डिवाइन को वो डोर दे दें, बाग डोर डिवाइन को दे दें संभालने के लिए। वो आपके लिए एक नया मोटिवेशन, एक नई उम्मीद, एक नया ज़रिया, एक नया रास्ता कायम करने वाले हैं, जिससे आपको काफ़ी रिवॉर्ड भी मिलेंगे। वंस यू स्टार्ट पुटिंग इन योर एनर्जीज इन द करेक्ट डायरेक्शन टूवर्ड सोल अलाइंड वर्क, आपको रिकग्निशन और रिवॉर्ड भी मिलेगा, राइट। एंड डिवाइन इज़ ऑलवेज फेयर, डिवाइन हमेशा फेयर हैं, गॉड हमेशा फेयर होते हैं, ठीक है। उनके घर देर है पर अंधेर नहीं है। तो जो भी चीज़ें आपने दी हैं आपके पास 2 गुना 4 गुना 10 गुना लौटेंगी, उस चीज़ पे विश्वास रखें। और जो भी अननेचुरल थॉट्स आ रहे हैं आपके मन में, या नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आ रहे हैं, क्वेश्चनिंग डाउटिंग हो रही है, उसको आप रिलीज़ कर दें। आज उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है अब, और आप अपनी सेल्फ मास्टरी में अगेन स्टेप अप कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी पावरफुल कार्ड टू कम आउट, which is telling me that ultimately this journey is here for us to step into our own self mastery, ठीक है। अपने स्पिरिचुअल जो स्ट्रेंथ है वो इसी कंपैशन में ही है, लड़ाई झगड़े में नहीं है, इस एनर्जी में नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं, मैं समझदार हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, नहीं। आपकी जो ट्रू सेल्फ मास्टरी है दैट इज़ इन द पावर ऑफ योर लव, इन द पावर ऑफ योर कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड फॉरगिवनेस, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पाइल के लिए। नेक्स्ट पाइल है रोडोक्रोसाइट। थैंक यू शानी सिंह, सो ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। रुबीना सिंह, जो हम खुद को दे रहे हैं वो डिवाइन काउंटर पार्टी हमको दे रहा है। यस एग्जैक्टली, क्योंकि वो मिरर है, इट्स ऑल अबाउट मिररिंग, है ना। तो जो हम खुद को दे रहे हैं, अगर और आप ये भी देखें कि आप उनकी तरफ क्या भेज रहे हैं, वही चीज़ लौटेगी वही लौट के आएगी, है ना। तो हम कुछ और चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर कहीं ना कहीं आपकी शैडो एस्पेक्ट भी वो कर रही है तो भी वही चीज़ लौट के आएगी, राइट। एंड तभी हमें ट्रिगर करता है, तभी हमें बुरा लगता है, बट एक्चुअली हम ही वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो हमारे मैस्कुलिन या हमारे ट्विन जो हमारे साथ कर रहे हैं, वही चीज़ कहीं ना कहीं सटल लेवल पे अपने साथ हम खुद ही कर रहे होते हैं, ठीक है। सो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज डियर वन विद दिस रोडोक्रोसाइट। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। 8 ऑफ कप्स आया है, ओके, जस्टिस कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइस, एंड द हर्मिट कार्ड, नाइस। तो अगेन मुझे रोडोक्रोसाइट अगेन इज स्टोन ऑफ कंपैशन and it is matching my kurti very beautifully it is almost like merging into my kurti, but rhodochrosite is a beautiful stone of compassion and healing and light-hearted childlike energy. Rhodochrosite is a beautiful stone which helps heal relationships और हमारे connections को strong करने में मदद करता है rhodochrosite. तो मुझे ऐसा feel हो रहा है ना, also this is a beautiful stone if you want to welcome your soulmate, you want to implement into your life. ये परफेक्ट क्रिस्टल है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई एक ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आप बाउंड फील कर रहे हैं, जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे हैं। हो सकता है आपका घर हो सकता है आपका एक कोई ऐसा जॉब हो, या आप कोई कामिक सिचुएशनशिप में हैं जिसमें आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है अभी। ओ माय गॉश, उसके नीचे फुल कार्ड है, राइट। फॉर दिस न्यू बिगिनिंग टू स्टार्ट विथ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, फर्स्ट यू नीड टू लेट गो एंड रिलीज एनी old baggage that you're holding right now, and particularly I'm getting कि most probably अगर आपने ये पाइल पिक करी है तो आप already शायद एक contractual marriage में हो सकते हैं, because there is a justice card and 8 ऑफ कप्स कमिंग अप, और आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, बाउंड महसूस कर रहे हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। प्रॉबेबली मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है मूव आउट करने का, बट अभी शायद पूरी तरीके से वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आप। डिसाइड मतलब स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं आगे, राइट। एंड दिस इज़ लाइक
सेल्फ साबोटाज एनर्जी आई एम फीलिंग, 7 ऑफ सॉर्ड्स, कभी ना कभी आपके माइंड में डाउट भी आ जाता होगा कि आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू मेक इट अलोन और नॉट, राइट? सो दैट माइट बी एन इशू दैट यू माइट बी फेसिंग. तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि हैव द क्लैरिटी, मेक द डिसीजन दैट नीड्स टू बी मेड. एंड हो सकता है अभी शायद ड्यू टू कामिक रेपरकशंस आप बाउंड हो अभी, बट एज सुन एज द व्हील स्टार्ट्स टर्निंग, यू नीड टू एक्ट, यू नीड टू लिव इन योर ट्रूथ, है ना? और वो उसके लिए आपको किसी चीज़ की वेट करने की ज़रूरत नहीं. यू कैन स्टार्ट लिविंग इन योर ट्रूथ राइट हियर राइट नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन, एंड दैट इज़ अ पावरफुल कैटेक्लिस्मिक रियलाइजेशन वंस यू रिकग्नाइज कि हाँ, मुझे अपना केवल सच जीना है. मेरे आसपास न जाने जितनी मर्जी चीज़ें हो रही हों, जैसे भी लोगों के इंटेंशंस हों मेरे आसपास, लोग मुझे स्टक करके रख रहे हैं, बांध करके रख रहे हैं या नहीं, बट मैं अपने ट्रूथ में जीऊँगी, एंड दैट इट सेल्फ इज़ गोइंग टू इनिशिएट ऑल ऑफ द डिफरेंट थिंग्स दैट आर गोइंग टू चेंज अराउंड यू. क्योंकि आप जो है अपना टाइमलाइन शिफ्ट आप खुद ही लाते हैं, ठीक है, बाय स्टेइंग स्टिल एंड बाय वर्किंग विथ योर सेल्फ, ठीक है, अपने अंदर. क्योंकि वो जो स्टकनेस है वो आसपास तो ठीक है एज अ रिजल्ट है, बट ये स्टकनेस आप ही के अंदर है. कहीं ना कहीं आपके माइंड में स्टकनेस है, या आपकी शायद एनर्जी में स्टकनेस आपको फील हो रही है. कई सारे केओटिक एक्सपीरियंस हो चुके हैं पास्ट में, और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एक फाइट की सिचुएशन थी जो अब क्लियर आउट हो रही है धीरे धीरे. आपको भी चेंजेस दिखने लगे होंगे. सो यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड, यू नीड टू रियलाइज दैट यू डोंट नीड टू फियर. तो आपको फेयर रिलीज करने की ज़रूरत है डियर वन. इफ़ यू पिक दिस रोडोक्रोसाइट राइट नाउ, आई फील कि आपको अपनी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में, हो सकता है आप मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, डजेंट मैटर, बट आपको अपनी एनलाइवेंड इंस्पायरिंग एनर्जी में स्टेप अप करना है, अपने ट्रूथ के साथ में पूरी तरीके से अपना सच जीना है, right? And that itself, like being in your truth, is going to make you magnetic to not only to your counterpart but to all the other people around as well, because you are living your truth, and that will exude in your energy, that will exude in your words, in your aura. वो सब तरीके से आपको शो करेगा. और इस जर्नी पे मुझे ऐसा लग रहा है आपने काफ़ी कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत स्टडी, बहुत रिसर्च करी है आपने, काफ़ी सारा वक्त जो है आपने अकेले गुजारा है सेपरेशन में, क्वाइटनेस में, और उसके बाद में आपका सोल ट्राइब जो है आपको मिलना शुरू हुआ है. और अब आपसे कहा जा रहा है, डिवाइन कह रहे हैं कि इट्स टाइम टू नाउ स्टेप अप इन टू योर सोल पर्पस. जो भी आप आए थे यहाँ पे करने, जो भी आपने अपने लर्निंग्स ली हैं पास्ट में, उनको शेयर करने का टाइम आ गया है, क्योंकि आप अपनी लाइट से और भी लोगों को लीड करेंगे, राइट? तो आपके आसपास जो भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, या जो भी स्टकनेस वाली एनर्जी आप महसूस कर रहे हैं, उससे बहुत जल्द आप मुक्त होने वाले हैं, बहुत जल्दी आप अपने आप को फ्री करने वाले हैं, राइट? सो प्लीज़ फोकस ऑन डूइंग राइट बाय एवरीबडी, ठीक है? आप दूसरों के साथ गलत ना करें, और डिवाइन आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, राइट? दैट इज़ ऑल व्हाट जस्टिस कार्ड इज़ अबाउट. कि जब जस्टिस कार्ड इज़, एज आई सी इट, इट्स ऑल अबाउट कार्मिक सर्व, कर्मा सर्व, ठीक है? तो जब जो हमने कर्मा ऑलरेडी कर दिया, जो हमने पुट आउट कर दिया, वो हमारे पास अब वापस आ रहा है. तो दैट इज़ वाई इट फील्स लाइक अ पनिशमेंट, दैट इज़ वाई इट फील्स लाइक अ जजमेंट दैट इज़ बीइंग पास्ड ऑन अस, कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ में. बट वी नीड टू रियलाइज कि अल्टीमेटली इट इज़ आवर ओन कर्मा दैट इज़ कमिंग बैक टू अस, राइट? वेदर गुड और बैड, but whether from this lifetime or from some other lifetime, we don't know that, okay? We just know that we need to make best of this situation and take the right decision to speak our truth, and act from our own wisdom, right? आपने जो ancient knowledge placed है already, आपके genetic memory में encoded है ancient knowledge, wisdom of the stars जो बोलते हैं ना, there is a star over here. तो उसमें अपनी विजडम में रहें, और अपनी केयरिंग, वाइब्रेंट और इंस्पिरेशनल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको स्टेप इन करने की ज़रूरत है, राइट? सो आई रियली होप दिस रीडिंग हेल्प यू डियर वन. इफ इट हेल्प, let me know in the comments down below. Please don't forget to like, share and subscribe. I love you so much. I'll see you again tomorrow.